She is teaching research and administration also. बहुत डिफरेंट काम कर रही हैं. हैप्पीनेस सेंटर है इनके यहाँ, उस पर मैं भी पिछले हफ्ते विजिट किया था. बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. शी इज PhD in education, MCom, MEd, MA philosophy, बहुत सारी qualifications, 20 years plus teaching experience, and current courses, number of courses are there, guidance and counseling at varied levels, curriculum design and development, research, quality concern in education system, happiness in education, जो मैं आपसे बात कर रहा था, happiness पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी एंड ICT इन एजुकेशन, इसीलिए मैंने इनको तकलीफ दी कि आप इस फील्ड में बहुत डिफरेंट कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं. एंड वी आर एसोसिएटेड फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स. मेरे बहुत अच्छी दोस्त हैं. और सो डॉक्टर रीतू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं. सारे टीचर्स हैं, सभी बहुत ही मैच्योर्ड और सिंसियर हैं. तो किसी हेलो, ठीक है. हम डिजिटल इनिशिएटिव्स पर बात कर चुके हैं. क्राफ्टिंग एंगेजिंग मूक्स पर बात की थी करण लता ने. स्क्रिप्ट राइटिंग, OBS वीडियो रिकॉर्डिंग, प्रोफेसर कोस्मा फ्रॉम जामिया. Creating animation clips using PowerPoint and screen recording, Mascom Jamia. Professor Srinivas sir, head of the department of the NIPA, he discussed about design, develop and deliver, 4-quadrant pedagogical approach, and learner-centric video content development. LMS Moodle overview through Genomio, जामिया के JNU के प्रोफेसर थे. AI powered online collaborative learning tools, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे. E-content development and overview of स्वयं, हमारे AMU के प्रोफेसर थे. Evaluation and assessment, developing 4 weeks MOOCs best practices, Dr. Puneet from Lakshmi University, you know, head of the Department of Computer Science. आज फ्रेंड्स जो डॉक्टर रीतू को जिम्मेदारी दी गई है, इट इज अबाउट MOOCs फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अप स्किलिंग एंड री स्किलिंग. बहुत ही वंडरफुल टॉक होने वाली है और आई होप she will be at your expectations as we have been at your expectations. Thank you, Dr. Ritu. Welcome, please. Thank you so much. so thank you so much, and it is always a wonderful time when I am here with you, and lot of learning takes place. आपके हर बात से कुछ न कुछ नया learn करते हैं. So I'm really thankful that you have invited me to this session, and dear participants and the colleagues, I hope they are from the teaching faculty, sir. They are university level. Yes, they are faculty members, different disciplines. Okay, so very wonderful to be here, and it is also very challenging that so today I am able to present my talk because I was traveling, and then I thought how I will manage, but see the beauty of the online things, कि कहीं से भी connect हो सकते हैं. बस आपको एक network की जरूरत होती है. तो बस वो network की तलाशते मैं आपके यहाँ अभी सामने बैठी हुई हूँ. I hope bilingual is okay, or we'll be talking in Hindi, sir? Or what is the choice of? Dear participants, please, you can tell. Yes, sir. Yes, ma'am. Bilingual. You can use bilingual. Bilingual, right, right. So the topic today, you all have been going through, you have learned many things. MOOCs के बारे में, आप full form भी जानते हैं MOOCs का, massive open online course, and it is the talk of the time. It is the talk of the 21st century needs. MOOCs.
और आप लोग ने ये बहुत सारी चीजें ड्यूरिंग द कोविड टाइम ये बहुत इनिशिएटिव्स के बारे में जाना होगा और कुछ कुछ आप लोगों ने ज्वाइन भी किया होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट it is just not the course, it has the beauty of enhancing your abilities. तो अगर कोई एक डेफिनेशन को देना चाहता है मुझे परिभाषा प्रोफेशनलिज्म की, तो व्हाट इज योर टेक इन दैट? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशनलिज्म? If anybody can open the camera or unmute yourself and tell me what is the meaning of a professionalism, what do you understand by it? क्या समझते हैं आप प्रोफेशनलिज्म से? Anyone? You can also write in the chat box if you are uncomfortable in unmuting yourself. Himshika ji, can you tell me? I can see your name on the screen, so I'm calling you by your name. Can you tell what is the meaning of a professionalism? Yes, wonderful to see you. Yeah. Professionalism, as I understand, that you do something with passion, Okay. and not only for earning, it should be also in your passion. Then only you can work professionally. Okay. Okay. This is your perspective of professionalism when we are able to do the things with passion. Anyone else would like to tell me what is the meaning of a professional? You understand? क्या होता है professionalism? Yes. Good afternoon, ma'am. Yes. 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 In Please. academics, you can say professionalism in academics. You can say that we have to be very much particular about our that is in my sense in academic it could be like this. A way of doing the job. Okay, रिजवान जी, आपकी ने कुछ बात कही, थोड़ा समझ में बीच में थोड़ा ब्रेक कर गया था, तो पूरी क्लियरिटी नहीं आई. अगर हम प्रोफेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं तो हम कॉम्पिटेंस के बारे में बात करते हैं. Whenever we are talking the person is professionalism, professional, it has the beautiful skill जिसको बोलते हैं competency. Competency या skill जो हमको चाहिए अपने प्रोफेशन के लिए. We can be of different profession, बट उसके लिए जो कॉम्पिटेंट या स्किल चाहिए अगर वो हमारे अंदर है, दैट इज प्रोफेशनलिज्म. ओके, तो अगर हम टॉपिक को समझे, प्रोफेशनल थ्रू मूव्स अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग योरसेल्फ. दिस टॉपिक वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है और अपस्किलिंग और रीस्किलिंग का क्या मतलब होता है. प्रोफेशनलिज्म जब की बात होगी तो वो सब सिर्फ स्किलिंग की बात होगी और उसमें कॉम्पिटेंसी की बात होगी. I hope this point is clear to everyone. I hope this audience is interactive and would ask questions in between or also add to my talk. अगर कुछ आपको लगता है you want to add, you can add it also. You are most welcome. But then please be participative. If you are opening your camera, that will help me. This will also motivate me. Teacher को क्या चाहिए? Students उसको दिखें. अभी मैं सिर्फ कैमरे में मैं अपने आप को देख रही हूँ. If you all can, and अगर network issues ना हो, I'm having a very weak network right now here, but still I am managing to open my camera because I want to see you all. This is मैं आपको जब तो देखूँ ना तो Ma'am, only issue is the network issue. all is Only ये सबका नेटवर्क इशू का इश्यूज है, बट प्लीज डू ओपन योर कैमरा. ठीक है, थोड़ा सा बीच बीच में ऑफ कर लीजिएगा. मेरा कभी वीक होगा तो मैं भी ऑफ करूंगी, बट देन थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है. यू फील लाइक. Hello. Am I audible? Am I audible, ma'am? यस यस सर, यू आर ऑडिबल. ओके, तो अभी आपने सबने कोई ना कोई बात की और कहीं ना कहीं से बात निकल के आई. स्किल की बात होती है, कॉम्पिटेंस की बात होती है. तो अभी हम ये बात करेंगे कि कैसे मूव के थ्रू वी कैन डेवलप द स्किल. एंड दैट स्किल तो है ही upskilling and reskilling. What is upskilling and what is reskilling? This is very important to understand. And in a teacher education, हम teachers की जो हमारी life है,
हम सब एक एक साल बड़े होते चले जाते हैं, और लेकिन स्टूडेंट हमारे उतने ही पीछे से आते जाते हैं। अगर मैं 40 साल की हूँ तो स्टूडेंट 20 साल का है, मैं 41 साल की हूँ स्टूडेंट फिर 20 साल का मेरे पास आया, मैं 42 की हो गई वो स्टूडेंट फिर 20 साल का आया। अगर मैं इतना जो गैप हो रहा है, अगर मैं अपस्केल ना करूँ अपने आप को, अगर मैं अपने आप को रीस्केल ना करूँ, आई थिंक वी वोंट बी एबल टू मैच द रिक्वायरमेंट्स, द नीड्स ऑफ द लर्नर. So I hope with this example, it is clear that it is a continuous process in teachers' life to upskill and और reskill भी करना है. Upskill मतलब जो आता है उसे upgrade करना है, और reskill मतलब कुछ नया सीखना है. जो आता था हो सकता है वो obsolete हो गया है, उसको नया सीखना है. So with this, I like to share my PPT which I have made. I hope do let me know whether it is visible to you all. क्या ये आपको visible है? No, ma'am. No, ma'am. Yes. Yes. Now Now it's visible. visible. It is visible, Yes, ma'am. right? Right. Okay. Yes, ओके, सभी को विजिबल हो गया स्क्रीन पे? सबको विजिबल हो गया? Yeah, Yes, it's ma'am, it's visible, ma'am. visible Yes, now. yes, it is Yes, ma'am. very Yes, clear. ma'am. Okay. Okay. So when I said about my topic, I hope you're not hearing any noise from my side. Are you hearing some noise? No, No, कुछ ma'am. आवाज आ रही है? no noise is Oh, Little coming bit, now. ma'am. Little Okay, bit. fine. Thank you. Because I'm not sitting at an isolated room. It could be, there are many people around. मैं खुद ट्रैवल कर रही थी तो उसी के ही बीच में आपका सेशन ले रही हूँ. Right. So the title of my today's 1 hour lecture is MOOCs for Professional Development, Upskilling and Reskilling. And very thinking wise, I thought I should make it more clear why I'm talking about upskilling and reskilling. It could be leveraging online learning for career growth. Basically ये जो पूरा टॉपिक है वो आपके करियर ग्रोथ के लिए जो सारी बातें हैं उसके लिए बात करता है. तभी हम अपस्किलिंग और रिस्किलिंग की बात करते हैं. हमारे कंट्री में हमने देखा है कि वी हैव डिग्रीज बट देयर इज अ लैक ऑफ स्किल नहीं है हमारे पास. So there is a lot of need, a dire need to upgrade ourselves with the skills and the, the required competencies which is required in every profession. Our profession is teaching, so we need that type of a skill which where we are able to connect with the student. और connection किस हिसाब से आप ले सकते हैं? So this is my objective of the session. I would make efforts to make you understand the role of MOOCs in professional development. कि role MOOCs का क्या है professional development? I will also try to talk about the benefits of upskilling and reskilling. And then I'll also make you understand how the right MOOC for a career goals can be chosen for making it possible. And then what are the ways, what is the plan of action for personal professional development plan using MOOC? This is the objective. On the basis of this objective, you prepare your mind that you're going to discuss all these things in this coming 1 hour. And if anything is left, please do feel free to ask. तो अगर हम MOOCs के बारे में बात करें, I will not go into much detail. It is something, अगर इसको हम समझें, it is massive open online courses. Can you tell me why it is massive? Why it is massive? many people can join. Many learners, thousands learners can join this program. Wonderful. आप लोगों की फुल फॉर्म तो पता होगा ना? Massive open online course. पता है इसका फुल Yes. फॉर्म सबको? Yes, yes. तो उसमें फिर अब open का क्या मतलब है? What is the meaning of open? Accessible Anybody to can all. access. Accessible to all. Yes, ma'am. Massive is a large number Large. of people can join and study together एक टाइम पे. Open is कोई भी ज्वाइन कर सकता है इसमें कोई किसी भी तरीके का भेदभाव Restrictions नहीं नहीं है, होते हैं. restrictions नहीं है. And online means definitely it is not face to face. It is using technology. Synchronize और asynchronized तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है इसमें.
तो इसको हम लोग ऑनलाइन कहते हैं, कोर्सेस आपको पता ही है, जो प्रोग्राम डेवलप किया जाता है टू स्किल, टू लर्न, टू अपग्रेड आवरसेल्फ। और अगर इसको देखा जाए तो ये एक तरीके का बहुत ही एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल तरीका है लर्निंग का, और एक ऐसा लैंडस्केप प्रोवाइड करता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, क्योंकि टॉपिक मेरा प्रोफेशनल डेवलपमेंट से है। इतना कुछ आपने पढ़ा होगा, आपने कुछ सीखा होगा, अभी हम टॉक की प्रोफेशनल डेवलपमेंट हम उसमें कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इस पे अगर देखा जाए कि सबसे इट इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, एंड इट इज कंटिन्यूसली understanding the emerging trends that helps organizations and individuals to maximize their benefits through MOOCs. And then what is the importance for professional development? सबसे पहले ये हमको हेल्प करता है स्टेइंग करेंट इन योर फील्ड, मतलब सबसे आप यू गो स्ट्रॉन्ग इन योर फील्ड। आप अगर अपग्रेडेड है, अपस्किल्ड है, यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग इन योर फील्ड। एंड देन आप बहुत ज्यादा जो चेंजेस हमारी इंडस्ट्री रिक्वायर कर रही है फॉर एजुकेशन, व्हाट इज द इंडस्ट्री? एजुकेशन क्या इंडस्ट्री है? कैन यू टेल मी? अगर हम एजुकेशन को एक सर्विस की तरह देखें तो व्हाट इज आवर इंडस्ट्री? हमारे स्टूडेंट्स कहाँ जाके क्या परफॉर्म करते हैं? हमारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स उसके बाद सोसाइटी में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं। हमारे लिए ये एक इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होकर वहाँ जाता है। तो सबसे पहले तो उनको हमें ऐसा तैयार करना है कि किस तरह से वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें, उसके लिए हमको अपने स्टूडेंट्स के लिए तैयार होना है। पॉइंट इज फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि हाउ वी कैन स्किल आवरसेल्फ, हाउ वी कैन डेवलप द प्रोफेशनलिज्म इन आवरसेल्फ। So that is the importance of professional development. तो अभी मैंने आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिखाया है, इसमें what is the need of upskilling and reskilling. If this is clear, the entire presentation would be very easy to understand. अगर हम upskilling की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है learning. Ma'am, the slides are not moving. We are still on the first slide. Is it not moving? Not I could see the first slide. No, ma'am. अच्छा, is it for everyone it is not moving, or for few of the participants it is not moving? No, because there is no point for you. ये स्लाइड आप सभी के साथ ऐसा हो रहा था कि किसी एक दो लोग के साथ Yes, ऐसा ma'am. हो Yes, रहा? ma'am. Yes, yes. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. दोनों वाई एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। अभी मूव कर रहा है, इस पे गया, फर्स्ट स्लाइड पे गया। Yes, ma'am. Yes, Is it moving? Yes, I'm on my first slide, Yes, ma'am. introduction. Can you see that? Okay. Yeah. I was explaining this. Now I have moved towards this slide. Need of upskilling and reskilling. इस पर आप लोगों को दिख रहा है ये स्लाइड? Yeah, ma'am. Yes. Can you see it? Right. Okay. कभी कभी Yes. अगर एक दो लोगों के एंड से नहीं दिख रहा होता है तो कभी कभी नेटवर्क इशू उनकी तरफ से होता है, जिसकी वजह से वो दिख नहीं रहा होता है। तो अगर सभी को नहीं दिख रहा है तो प्लीज लेट मी नो। अगर किसी को नहीं दिख तो भी बताइए, मे बी शेयर एंड शेयर करके वो फिर से शेयर हो जाता है। तो यहाँ पर हम अभी इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, मैंने इसको अभी फुल स्लाइड शो पर नहीं किया है। आई एम गोइंग टू डू दैट। प्लीज डू कंफर्म वेदर यू आर एबल टू सी इट और नॉट। Now can you see? This slide is visible to you? Yes, ma'am, it's visible now. Okay. तो upskilling और reskilling definition अगर हम upskilling की देखें, learning new skills to advance in your current role. इसका मतलब है कि जब हम कोई नया स्किल सीखते हैं जो कि हम करंट रोल को एडवांस करने के लिए, उसको बोला जाता है अपस्किलिंग। उसका एग्जाम्पल है एडवांस टेक्निकल स्किल्स, लीडरशिप ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। कोई बता सकता है कि कोई और भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है?
कुछ आपके दिमाग में कोई और एग्जाम्पल आ रहा है? एनीवन? किसी के दिमाग में कोई और एग्जाम्पल आ रहा है? आप अपस्किलिंग का, अपने टीचिंग लाइन में कोई अपस्किलिंग का एग्जाम्पल आ रहा है आपके दिमाग में? Using technology to teach. Using technology to teach. Okay. If previously you were not using technology to teach, now you are using your technology to teach. Upskill किया, आपने सीखा और आपने उसको एडवांस स्किल सीखे. ओके. रीस्किलिंग का मतलब तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है अपस्किलिंग. रीस्किलिंग का मतलब होता है जब हम कोई नया स्किल सीखते हैं और कुछ ट्रांजिशन इनटू डिफरेंट रोल. मान लीजिए मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ या मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ाने का काम है, पर मुझे लगता है कि मैं कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स कर कर क्यों ना मैं एक एजुकेशन मैनेजमेंट के फुल फ्लेज काम में चली जाऊं. तो एजुकेशन मैनेजमेंट एक टीचर को उतने अच्छे से नहीं आता है जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजमेंट वाले को आना चाहिए. तो हमने कोई एक ऐसा कोर्स किया जिसमें एजुकेशन का कंटेंट तो है ही, पर उसमें लीडरशिप और मैनेजमेंट इन सब का कंटेंट आया और हमने एक अपना एक स्कूल का सेटअप स्टार्ट कर लिया. तो हमने क्या किया, एक नया स्किल सीखा और उसी लाइन में उसको वर्टिकली हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट लेकर दूसरे काम को हम करने लगे. तो उसको बोला जाता है रीस्किलिंग. जैसे कि आप एग्जाम्पल मैंने यहाँ से तो दिया हुआ है, बट आप समझ सकते हैं कि आप एक फुल फ्लेश टीचर हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, बट यू फेल्ट मे बी आई कैन डू सम अदर स्किल्स और एजुकेशन से जुड़ा हुआ. तो देन यू सर्च कि कौन सा कोर्स कर सकते हैं. आपने सर्च किया, आपको एक एजुकेशन मैनेजमेंट का कोर्स समझ में आया, तो आपने उस कोर्स को किया और आपने अपने जो आपने एजुकेशन का ट्रेनिंग ली थी और एजुकेशन मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग ली उसके थ्रू आपके अंदर एक नया स्किल सेट तैयार हो गया है और अब आप कुछ डिफरेंट एरिना में काम कर सकते हैं. दिस इज नोन एज रीस्किलिंग. सो हैव यू आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू राइट नाउ हियर? एक बार तो हमको जो काम कर रहे हैं उसी में थोड़ा एडवांस सीखना है, तो उसको अपस्किलिंग कहते हैं. बट अगर हमें अपने स्किल के साथ कुछ नया स्किल सेट लेकर कुछ थोड़े डिफरेंट एरिया में मूव करना है, उसको बोला जाता है रीस्किलिंग. Is it clear? The slide is clear to you, everyone? Yes, ma'am. And any example you have for this? कोई example है आपके पास इसके लिए? Yes, ma'am, it is very clear that suppose right now I am teaching in a department, okay? Right. And maybe by reskilling, I myself, after getting some administrative skill, I want to become a controller of examination or assistant controller of examination or Yeah. deputy controller examination. Okay? Yes, yes, beautiful. Right, right. So, this again I have moved towards the next slide. Is it visible now to everybody? Benefits of MOOCs. क्या ये slides clear हैं आपको? No, it's not moving. The PPT is still there only. It's not moving. No, अच्छा, ma'am. अच्छा, just give me a second. I don't know why it is not moving. नेटवर्क तो पूरा दिख रहा है मुझे. एक सेकेंड. Just give me a second. I'm switching over to the next another next.
क्या डॉक्टर रितु कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया सर, अभी वो ज्वाइन करेंगे शायद फिर से। जॉइंट तो हैं वो, लेकिन शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। स्लाइड शेयरिंग का इशू था, इसलिए वैसे वो फिर से गई हैं, रिकनेक्ट होंगी शायद। अच्छा। स्लाइड शेयरिंग उनकी विजिबल नहीं थी, असल में वो स्लाइड शो में नहीं था, प्रेजेंटेशन मोड में था, इस वजह से। जी जी। Hello, moving on. Slides are moving. It's not visible, ma'am. आपने शेयर किया डॉक्टर रितु? सर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं क्या? हाँ, मुझे कर दीजिए। सर मैंने आपको स्लाइड्स व्हाट्सएप कर दिया। जी, आप आया देखिए स्क्रीन। यस सर, आ रहा है, वेरी क्लियर। अब आप इसको फुल मोड पे लगा दें। जी। Ma'am, kindly unmute yourself. Yeah. Is it clear now? Yeah, it's clear now. Okay, right. So when I was talking about the what is the benefits of professional development and MOOC, this is something very clear to you all that this is something which I will not spend my much of the time, but it is very important to tell you all also that when we use MOOCs, why we use MOOCs? Because it gives us flexibility and accessibility. Then it also gives us the opportunity to learn at our own pace anytime and anywhere. Our own pace का मतलब होता है कि अगर मैं 1 घंटे का लेक्चर आज सुन सकती हूँ तो मैंने 1 घंटे का सुना। अगर मैं 2 दिन नहीं सुन पा रही हूँ या नहीं अटेंड कर पा रही हूँ तो कोई बात नहीं, वो मेरे लिए अवेलेबल है, मैं बाद में भी कर सकती हूँ। तो इट इज माई ओन पेस के हिसाब से मैं इस पर काम कर सकती हूँ। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव डेफिनेटली। अगर आप कोई कोर्स करने जाते हैं तो ऑनलाइन में अगर कोई ऑनलाइन कोर्स
आपको 30-40,000 का भी अगर मान लीजिए कोई कोर्सेरा वगैरह में ऐसे मूव्स के हैं मिलते हैं, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। अगर आप खुद सोचिए कि आप ऑफलाइन में इस कोर्स को करने जाएं और कितने सारी और कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उससे, और ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फ्री भी हैं। तो इन टोटालिटी इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फ्री भी हैं और लो कॉस्ट के भी हैं। देन बहुत ही वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर्ड होते हैं अपने आप को री स्किलिंग करने के लिए और अपस्किलिंग करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो उनके सर्टिफिकेशन है, जो उनका रिकग्निशन है, इट इज नोवेयर एनी लेस देन द अदर इंस्टीट्यूट्स जिस पे हम लोग कर रहे होते हैं। वो कोर्स उतने ही इक्वली वैलिड है एंड एक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट अब तो बहुत ज़्यादा यूजीसी ने भी ऑनलाइन कोर्सेज और डिजिटल लर्निंग को बहुत एम्फेसिस किया है। वो 30% तक 40% तक वो बच्चे लोग, टीचर्स, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन करना चाहते हैं, एंड इट इज इक्वली वैलिड एंड रिकग्नाइज्ड। So it is so beautiful to learn through it. It is cost effective and it is equally valid. You have a certificate which can be used in your life later on without any hassle. And then these certificates are also recognized by the employers. It is not that it is not recognized. ये employers भी इसको recognize करते हैं. So we can move to the next slide, sir. Can I have a control of moving it? Now, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज जानते होंगे मूव्स के थ्रू। स्वयं एक बहुत बड़ा इंडियन प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। उसके अलावा मैंने बहुत से नाम यहाँ लिखे हुए हैं। प्लीज डू लेट मी नो कि आप इसके आगे और भी कौन से कोई और जानते हैं। आई विल इंक्लूड दैट हियर ऑल्सो, बट हियर आई हैव टेकन आउट very important and very famous platforms which are giving certificate learning courses and giving certificates. स्वयं के बारे में सर ने कहा कि स्वयं के बारे में आई डिड नॉट टेक इट पर्पसली, बिकॉज स्वयं का एक सेशन आपको जरूर से हुआ होगा, कैसे आप ज्वाइन करें, क्या करें, उन सब के बारे में होगा। So that is a beauty. You all can join the courses. You all can also collaborate with faculty members or amongst yourself, or you can develop your course also and put it on the स्वयं। ये सारे चीजें आप लोगों को इस FDP में जरूर से इसके बारे में जानकारी दी गई है, because I was seeing the topic and I'm sure that you have learned about it. Apart from that, there are many other platforms, that is Coursera, edX, Udacity, LinkedIn Learning। आप लोग ने कभी LinkedIn पे ट्राई किया है? जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप लोग LinkedIn पे हैं? बहुत लोग इसमें LinkedIn को Yes, ma'am. किस प्रकार से LinkedIn पे इस्तेमाल है। करते हो आप लोग? किस प्रकार से इस्तेमाल करते हो LinkedIn? It is a beautiful side of connecting with professionally with the people of our area and different areas, and it is also providing the courses which can be done and which can be used as upgrading or reskilling yourself. और कुछ एरियाज में उसके बहुत से कोर्सेज हैं, जैसे मैनेजमेंट्स में है, टेक्नोलॉजी में, डेटा में, बहुत सारे कोर्सेज हैं। हमारे एजुकेशन में कुछ कम कोर्सेज हैं, बट स्टिल दे आर अवेलेबल। वी कैन यूज इट एंड वी कैन equally get the benefit of it. So these are the platforms जिसके थ्रू आप बहुत से कोर्सेज आप कर सकते हो। और ये जो मैंने बिग यूनिवर्सिटीज जिसमें हम कभी सोचते हैं कि जाके हम कुछ लेक्चर लें, कुछ कोर्सेज करें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, दे आर ऑल्सो रनिंग देयर मूव्स विच वी कैन join, and their learning materials are free, but if you have to get the certificates, you have to pay some $80, which comes around 4-5,000 something rupees, और हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, और उसमें आप वो सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो। तो सी द ब्यूटी, हाउ यू आर अपग्रेडिंग योरसेल्फ। आपने यहाँ लखनऊ में रहते हुए, अपने अलीगढ़ में रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए, आपने एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स ज्वाइन किया, और अपने टाइम जोन के हिसाब से आपने इसकी पढ़ाई की, और आपने, अगर आप खुद हार्वर्ड जाते तो बहुत से पैसे और खर्च होते हैं, बट वो 5,000 10,000 कन्वर्ट, हमको लगता है कि सर्टिफिकेट के लिए इतना पैसा, बट देन इफ यू आर वेरी स्मार्ट, you are investing on these things, definitely your career growth is going to be taking a different shape, right? परसेंट में अभी जो है उसके बहुत बियॉन्ड पे। तो ये सब चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए फॉर दैट।
Sir, we can go to the next slide. Any questions still here you want to ask? कि इसमें कुछ ऐसी चीज है आपने किसी ने कुछ किया होगा? Okay. Next very important topic which will lead us to the professional growth is we need to identify our goals. कि मुझे किस प्रकार के courses को करना है. This is not, I think, पूरा clearly आ रहा है आपके screen पर? एक second. Can you see the lines which are written down उसके नीचे? Yes, ma'am. Okay. तो इसके पीछे वाली स्लाइड पर जाना था. हाँ. तो how do you choose your right MOOC? The right way of choosing the MOOC first is you need to first identify your goal कि हम मुझे कौन से करियर ग्रोथ के लिए कौन सा स्किल का एक्विजिशन करना है, क्या चीज मुझे चाहिए. Like here, many of us would think that this is a digital time and I do not have ICT enabled skills with my teaching. So हम लोग कोई ऐसा कोर्स कर सकते हैं जिससे हमारी ICT enabling स्किल डेवलप हो जाए और हम अपने आप को अपस्किलिंग कर लें, या हम रीस्किलिंग करके कुछ एजुकेशन लीडरशिप का कोर्स ले लिया, कुछ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स ले लिया, कुछ अगर आप मैथमेटिक्स स्टार्ट्स के हैं कुछ डेटा एनालिसिस का कोर्स ले लिया, जिससे आप अपना एक नया डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं. तो फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि यू वांट टू अपस्किल योरसेल्फ और यू वांट टू रीस्किल योरसेल्फ. देन you have to then go for different sites जो मैंने आपको बताई हैं, उसके अलावा और भी हैं, but go for the best one because their certificates and their content is very well recognized and बहुत ही thoroughly made हैं, जो हमारी learning को बहुत ही अच्छे तरीके से conduct कराते हैं. उसके बाद you have to check जो आपके जो कोर्स के कंटेंट्स हैं जिन्होंने डेवलप किया है उनके क्रेडेंशियल्स कैसे हैं. डेफिनेटली अगर हम कोई कोर्स स्वयं पे देख रहे हैं तो वी नो कि जो भी लोग उसमें आ रहे हैं उनका बहुत थरो स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स हैं, जिसकी वजह से वो कोर्स को वहाँ अपलोड कर रहे हैं बिकॉज बहुत स्क्रीनिंग पर जाता है कोर्स. Suppose if you are thinking to make any course, you have to make to that level so that it can be approved and it can be run by the different things. यार आप खुद कोर्स करने जा रहे हैं तो you have to make your check the credentials of your people, those people या those organizations who are running it. Then उसका reviews पढ़ने के बाद, ratings पढ़ने के बाद, you can join those courses. This is what you will benefit more for upskilling and reskilling. So we can go to the next slide. ओके मैंने आपको एक यहाँ पर एक केस स्टडी प्रेजेंट की है अपस्किलिंग की. यहाँ पर एक कोई मिस्टर XYZ हैं एंड उनका जो अभी प्रेजेंट उनकी जो पोजीशन है वो मार्केट कोऑर्डिनेटर की है एंड उनका गोल था कि कुछ एडवांस कोर्स कर वो एक मैनेजरियल पोजीशन पर चले जाएं. दिस वाज ही वांटेड टू डू बट ही वाज नॉट एबल टू डू. एंड उनकी जो करंट स्किल्स हैं वो बेसिक मार्केटिंग स्किल्स की हैं, उनका कंटेंट क्रिएशन की हैं और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की हैं. बट जो उनको रिक्वायर्ड स्किल्स थी जो जिसकी वजह से उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था वो सब चीज़ों के बारे में बात करें तो उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में उनको चाहिए था, उनको डेटा एनालिटिक्स के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए थी, स्किल्स चाहिए था, उनको प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज और लीड किया जाता है उसके बारे में उनको जानने की ज़रूरत थी. बट ही वॉज लैकिंग इन ऑल दोज थिंग्स. आप भी अपने अराउंड अपने अंदर सब चीज़ें महसूस कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मेरे को क्या और कैसे हम कर सकते हैं. लाइक हम लोग टीचर्स हैं, हमारे अंदर एक स्किल होना चाहिए हाउ टू राइट गुड रिसर्च पेपर. ओके बट एंड और एक अच्छी जगह पब्लिश हो जाए क्योंकि पेपर तो कभी भी कहीं भी पब्लिश हो जाते हैं. बट वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, UGC कैट उसके लिए एक स्टैंडर्ड पेपर चाहिए. हम एज ए टीचिंग फैकल्टी अगर हम सारे लोग हायर एजुकेशन के हैं सो इफ यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ so what you can do, you can search कि ऐसे कोई क्या एक महीने का FDP या कोई कोर्स चल रहा है जिसमें मैं एक हाउ टू राइट अ गुड रिसर्च पेपर या रिसर्च मेथोडोलॉजी या किस पे मैं कुछ कोर्स कर सकती हूँ. अगर आपको लगता है चलो आपको मिला प्लीज डू जॉइन एंड देन द एंड प्रोडक्ट वुड बी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर.
हम हो सकता है एक लेवल का पेपर लिख लें जिसके थ्रू हमको और रिकॉग्निशन मिल जाए, बिकॉज getting your paper published in Scopus or Web of Science or UGC CAT definitely give you an edge. आपका बहुत अच्छा रिसर्च ओरिएंटेशन और आपकी आइडेंटिफिकेशन एज ए रिसर्चर बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप गुड रिसर्च जर्नल में पब्लिश करते हैं जिसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर है या वो उसका बहुत रेपुटेशन है। तो उसी तरीके से ये जो मिस्टर एक्स हैं इनको ये स्किल्स चाहिए थी और उनको अभी ही वाज लैकिंग इन दैट। व्हाट ही डिड, सर वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। he searched many courses, उन्होंने सर्च किया एंड उन्होंने कोर्सेरा प्लेटफॉर्म इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं वहाँ पर। आई थिंक आप अपने नीड के हिसाब से यू ऑल कैन फाइंड कोर्सेज एंड डू दैट। एंड उसमें सिर्फ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के स्वयं पे तो हमें इंडियन IIMs, IITs, इग्नू इनके कोर्सेज मिलते हैं जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज हैं, लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के। कोर्सेरा पे आपको डिफरेंट लीडिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज भी आपको इसमें मिलते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे एक कोर्स सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग का और ये सारे कोर्सेज he did, and then what is the outcome? He acquired new skills और वो जो न्यू स्किल्स थी उनके प्रोफिशिएंसी इन एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, डिसीजन मेकिंग, प्रोजेक्ट हैंडलिंग, प्रोजेक्ट लीडरशिप में उनकी इंक्रीज हुई। नेक्स्ट टाइम वो प्रमोशन के लिए अपने इंटरव्यू में बैठे, he was much more aware, he had more skill and he got promoted. He got promoted because the recruiters and the seniors could see कि ये जो हमें चाहिए वो इसके अंदर ये है। तो इस तरीके से ये अपस्किलिंग का एक केस स्टडी है एंड इट कैन बी विद एनी वन ऑफ अस आल्सो। हम लोगों में भी अगर किसी ने कोई ऐसा कोर्स किया है और उसको लगा कि उसको बेनिफिट हुआ, यू वुड लाइक टू शेयर एनी, इज देयर एनीवन कुछ कोर्स किया एंड इट गेव यू एन एज? अपस्किलिंग का कोई कोर्स मतलब आपको लगा कि आपने मूव्स के थ्रू कर लिया है या किसी ने कुछ कोर्सेज किए हैं यहाँ पे मूव्स के थ्रू? किसी ने कोर्सेज किए हैं यहाँ पे मूव्स पे? कोई कोर्स किया है यहाँ पे जो भी जितने लोग हैं? Yes, ma'am. Actually, we have done in through the MOOCs one NASA RSET course, NASA remote sensing application course that we have done. So what benefit you derive from it? Yeah, it was really very much benefit because they gave us the new technology, advancement techniques, and their tools we have used now. So are you using it in your teaching profession? I am using in making the lab practical exam classes for the PG students, so that I am giving them with the data with their Okay. links and all that. रिजवान जी आपके कुछ आवाज बीच में ब्रेक हो जाती Maybe now am I audible, ma'am? Hello. Okay. So one Now am I example is audible? here रिजवान जी has used, हाँ अभी yes you're right. अभी आ रही है? Is there anyone else who has हाँ आ रही है, अभी अब सुन लिया मैंने आपकी बात। Thank you so much. So this is one example which Rizwan has given. Anyone who would like to share कि कुछ किया था हमने और उससे हमारा थोड़ा फायदा हुआ? Is there anyone else? How many of you has just raise your hand or write कि you have registered in any MOOC and you have tried to do any courses? कुछ लोगों ने यहाँ courses किए हैं? किसी ने नहीं कोर्स किए हैं यहाँ पे? मैम हाँ जी। मैंने तो नहीं किया, लेकिन मेरा बेटा अभी 9th में है, लास्ट ईयर 8th में था, तो उसने पाइथन जी। लैंग्वेज कंप्यूटर की वो कोर्सेरा से लर्न की है। अच्छा, तो उसको क्या बेनिफिट आप देख पा रहे हो? वो पाइथन काफी उसके सीख गया है, काफी अच्छा है, उसका कमांड काफी अच्छा जी। लेकिन जब उसकी 13 ईयर से कम एज थी, वो दे गेव सर्टिफिकेट आफ्टर 13 ईयर्स। तो जो है लर्निंग तो उसकी बहुत अच्छी हुई, वीडियो बहुत अच्छी थी, तो अब आफ्टर 13 years he will give the exam, then he will get the certificate. ओके हाँ, ये सब कंडीशंस तो हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी उसमें है कि नहीं है। बट सी, टू पीपल आर शेयरिंग दैट देयर स्किल हैज बीन एडवांस्ड and they are taking the benefit. Here many of us have, I think, not joined any courses and are not aware. So my suggestion and my request from this forum would be, please do search some course and upgrade yourself. It is very important.
अगर आपको इस अपने वर्किंग एरिया में ब्लूम करना है तो रियली यू हैव टू नो लर्न होलिस्टिकली एंड मूक्स से आप डिनाई नहीं कर सकते हो, मूक्स से डिनाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये इट इज अ नीड ऑफ द आर्ट। आप अपना खुद का मूक्स बनाइए और मूक्स खुद का बनाने से पहले एक कोई मूक से कोई कोर्स ज्वाइन करिए अपने सब्जेक्ट इंटरेस्ट से और देखिए कि कैसे वो हो रहा है एंड डेफिनेटली गेट मोटिवेटेड एंड बहुत ही कोलैबोरेटिव काम होता है। तो आप जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनके साथ छोटे छोटे एक्शंस के साथ कोलैबोरेट करिए एंड डेवलप योर ओन मूक आल्सो। दिस वुड बी अचीवमेंट ऑफ दिस एफडीपी व्हिच इज बीन रन इन इसका कुछ लास्ट फेज चल रहा है, बट इसका इंटेंशन यही है कि आप लोग इसके बारे में अवेयर हो, बिकॉज फ्यूचर इज दिस ओनली, यू कैन नॉट डिनाई। हम लोग एआई को डिनाई नहीं कर सकते हैं, हम मूक्स को डिनाई नहीं कर सकते, इसमें कितना बेस्ट कर सकते हैं उसके लिए हमको बहुत ओपन होना पड़ेगा एट वॉट एवर एज वी आर। अगर हम सोच रहे हैं कि अभी तो मैं 10 साल की नौकरी के बाद की मैं क्यों उसे करूं, नो, उस 10 साल में यू कैन डू वंडर्स। सो फॉर दैट यू नीड टू बी नो वेरी एक्टिव एंड इट इज नॉट गिविंग अ लॉट मोर। ठीक है, तो ये एक स्टडी था अपस्किलिंग का। सर वी कैन गो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई एम रियली सॉरी आपको बॉदर कर रही हूँ सर, तो प्लीज। तो इस केस स्टडी का रिजल्ट क्या आया कि एक ऐसा सर्टिफिकेट मिला डिजिटल मार्केटिंग का, डेटा एनालिटिक्स का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इतने सारे सर्टिफिकेट इसको मिले, अलग अलग कोर्सेज उन्होंने किया। अब उनकी पोजीशन मार्केटिंग मैनेजर की, उनको प्रमोशन हो गया। अभी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो और भी ज्यादा बढ़ गई और उसके ज्यादा उनकी रिकग्निशन भी बढ़ी। एंड देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द करियर, सैलरी इंक्रीज है, एक ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन है और एक प्रोफेशनल रेपुटेशन है कंपनी। And this is something which I'm giving from my experience. One of my known has done this and he was struggling with his career, and later on within a year or so he did all these things and now he has moved to the different company। तो बहुत ज्यादा और अच्छा कर रहे हैं। So this is some these things motivate us और हम भी अपने लाइफ में ये सब कर सकते। डोंट गेट stagnate yourself anywhere। आपके पास बहुत ही ओपन सिस्टम्स हैं जिसको आप यूज कर अपने हिसाब से, अपने समय से, अपने रिक्वायरमेंट से, अपनी नीड से आप उसको कर सकते हैं। हाँ, बस आपको बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा कि कौन से कोर्स से हम कहाँ स्केल कर सकते हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, this slide is going to tell you about, एक सेकेंड, मुझे स्लाइड थोड़ी कम दिख रही है अपने एंड से, I don't know why, but just give me a second। So can it be little, इसका zoom हो सकती है स्लाइड? ये मेरे एंड से थोड़ी सी भी नहीं हो पा रही है। ओके, यस सर, राइट। ओके, जब हम ये बात कर रहे हैं कैसे हम एक प्लान डेवलप करें, सबसे पहले जो हमको अपना प्लान डेवलप करना है वो प्लान डेवलप करना है कि सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव, देन create a learning schedule, create a dedicated regular time for the coursework, then you have to engage yourself कि क्या किस तरीके से उसके जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके डिस्कशन फोरम्स होते हैं उसमें आपको एंगेज होना पड़ेगा। आई विल शो वन कोसेरा का साइट में आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आप लोग उसको इसमें कर सकते हो। और जब हम एंगेज होते हैं तो लास्ट में हम ये देखते हैं कि उसका आउटकम क्या निकल कर आएगा कि हम किस तरीके के सर्टिफिकेट्स को हम ले सकते हैं, किस तरह के सर्टिफिकेट्स से हम चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। राइट, सो राइट नाउ एवरीबडी, एक मैं आपको अपने ये स्लाइड शेयर हो जाएगी तो मैं एक आपको लाइव भी दिखाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए
कैन यू सी दिस? ये 4 पॉइंट्स आप देख पा रहे हो? कैन यू सी दिस? सेट, क्लियर, सेट, क्रिएट, एंगेज एंड पार्टिसिपेट। आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं, ये वाले पॉइंट्स? और मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक पेज में आप लोग जो भी कोर्स कर रहे हैं, सबसे पहले I want you all to write what is something which you want to upgrade yourself, और फिर कैसे उसको, क्या कोर्स करना चाहते हैं, और फिर I'll help you कैसे आप उसको सर्च कर सकते हो। So I'm giving you 2 minutes. आप लोग नोट करिए कि आप लोगों को क्या थिंक कि कौन सा ऐसा स्किल है जो आपको डेवलप करना चाहते हो अपने टीचिंग करियर में। Is it clear what you have to do? Is it clear? Is it clear? आप लोग कुछ अपने जो करना चाहते हैं, आप लोग अपना सपोज एनीवन, कोई भी अनम्यूट करके मुझे बताइए। जयप्रकाश जी, कैन यू हियर मी? जयप्रकाश? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो यू बिलोंग टू विच स्ट्रीम? कौन से टीचर हैं, किस सब्जेक्ट के हैं? जयप्रकाश जी, विच फील्ड यू बिलोंग Hello. टू? यस सर, यस सर। आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं सर? विच सब्जेक्ट यू टीच From सर? hello. जी सर, जी सर। Am I audible, ma'am? यस यस, आप बताइए, आप क्या पढ़ाते हो सर? Ma'am, I'm a research scholar. रिसर्च स्कॉलर। अच्छा, ओके। सो विच सब्जेक्ट यू डूइंग रिसर्च? Ma'am, education. Education, okay. So right now, do you feel any need कि you want to learn something new apart from doing research, या इस रिसर्च में ही कुछ आप नया कुछ ऐड करना चाहते हो अपने करियर में? कुछ सोचा है? सोचा नहीं तो अभी Yes, ma'am. सोचिए। Yes, ma'am. That is why I joined this हाँ, training session workshop from where I am learning about MOOC. okay, okay. So do you have you gone through कि मुझे रिसर्च में करें, तो हो सकता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोई कोर्स आप करना चाहोगे, इससे और अच्छी आप रिसर्च हो जाए, है Yes, ना? ma'am. I have done that, ma'am. I have already done that, ma'am. क्या कर लिया आपने? Ma'am, I have already done a course on research methodology. अच्छा, कुछ मेरा मतलब है कि आर यू फीलिंग एनी नीड कि मुझे कुछ, आई वांट टू एक्चुअली डिस्कस कि कैसे आप सर्च कर सकते हो, तो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू सो मच कि आपको अगर लगता है कि कोई ऐसे टॉपिक है, मान लीजिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का कर लिया आपने, अगर आपको टॉपिक जुड़ा हुआ है एजुकेशन से, कि कुछ आपने एजुकेशन के प्राइमरी एजुकेशन में कुछ करना चाहते हो, एंड यू वांट टू नो कि इसमें और क्या क्या कोर्सेज हैं जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये आपको हो जाता है कि यू नीड टू सेट योर ऑब्जेक्टिव कि मुझे क्या करना है। देन जब जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, तो यू हैव टू नाउ आइडेंटिफाई कि कहाँ से हम इसको, कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू मैं इस अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं। ओके, और फिर जो हमें कोर्सेज मिल जाते हैं, हमें बहुत एक्टिवली एंगेज होना पड़ता है उन कोर्स के साथ में। उसके उसके क्विजेज आते हैं, उसके डिस्कशन फोरम होता है, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, हमको उसको अपने टाइम बाउंड तरीके से उसको पूरा करना होता है और उसका एग्जाम देना होता है। जब हम उसको कर लेते हैं तो लास्ट में हमको क्या मिलता है? हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाते हैं। तो आई जस्ट वांटेड यू ऑल टू मेक अ रोड मैप लाइक दैट। किसी ने बनाया है ये चीज? उसके कोई शेयर करना चाहता है? Anyone would like to share, or I can move ahead? Okay. Are you getting what I am asking you to do? मैं आपको इस पॉइंट पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों में कुछ दिमाग में बात आ रही है, हाउ टू चूज, हाउ टू एंगेज, कुछ प्लान है, वो आप लिख के हमसे शेयर कर सकते हैं, एंड विद योर एग्जांपल आई कैन हेल्प अदर्स आल्सो टू आइडेंटिफाई कि वो क्या क्या, कैसे अपना को प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं थ्रू मूव्स। एनीवन वुड लाइक टू शेयर? सर हम अभी दे आर नॉट रेडी।
ओके, जब आप लोग इसको करने जाएंगे तब ऐसा नहीं होगा कि बहुत आसानी से हो जाएगा. There are going to be many challenges because whenever there is something good, it comes with a challenge. ये हर चीज में होता है, इसके साथ में भी होता है. सबसे बड़ा चैलेंज उसका होता है टाइम मैनेजमेंट का. बहुत बार हम कोर्सेज ऑनलाइन ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ आवर वर्क जो है, लाइफ जो बैलेंस है, या हमारे और भी जो कमिटमेंट्स हैं उसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं. तो वो एक टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग चैलेंज. वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन आवर वर्क, आवर लाइफ एंड स्टडी. Second very important and very important challenge which is faced by everyone, included me, that you have to be continuously stay motivated, that you have to complete your course. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन में तो होता है कि टीचर ने मांगा है तो हमें देना है कोर्स. ऑनलाइन में क्या होता है कि चलो कोई देख नहीं रहा है, हमको मैं ही कर रहा हूँ, इस बार नहीं दिया अगली बार दे देंगे, अगली बार नहीं दिया. ऐसे करते करते बहुत बार हम लोग मोटिवेटेड नहीं होते हैं और किसी किसी वजह से टालते चले जाते हैं और हमारा वो काम पूरा नहीं हो पाता है. इसकी वजह से हम वो कोर्स को पूरा नहीं कर पाते हैं. I wanted to do one course on happiness. I had joined twice, but due to my engagement, I finally हम उसका एग्जाम ही नहीं दे पाए. और इस बार third time I have joined that course because really I wanted to complete that course. और इस बार I'm motivated कि इसका एग्जाम देकर मैं इसको कंप्लीट कर दूं. तो ये जो मोटिवेशन है वो अपने आप से क्रिएट किया जाता है एंड बिकॉज ऑफ आवर एंगेजमेंट हम लोग उसको मिस आउट कर जाते हैं. तो ये सब चीजों की वजह से भी चैलेंजेस बहुत बढ़कर आते हैं. दैट वी हैव टू अगेन थिंक. देन देयर आर मेनी टेक्निकल चैलेंजेस आल्सो. कि वी हैव टू जो टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से भी बहुत से चैलेंजेस हैं. वी डू नॉट, अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से इतने फेमिलियर नहीं है. तो वो उसकी वजह से भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि कहाँ रजिस्टर करें, कैसे करें, कि अपलोड करें, क्या करना होगा, ऑनलाइन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं. माय सजेशन इज करने से ही होगा. यू हैव टू फर्स्ट ज्वाइन, सी इट, टेक द फील हाउ इट इज डन, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू. और यहाँ पर बात हो रही है कि आप कैसे मूव्स को बनाएं, अपना मूव्स क्रिएट करें. बट उससे पहले एक कोई मूव को कोर्स को ज्वाइन कर कंप्लीट करके देखिए कि क्या क्या इसके अंदर मोडालिटीज हैं, कैसे ये हो रहा है, एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट योर ओन मूव. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्निकल इश्यूज, बट यू हैव टू फेस इट वेरी स्मार्टली. एंड टेक्निकल इश्यूज, टेक्नोलॉजी जितना आप यूज करते हो उतनी ही आती है, जितना आप भागते हैं उतनी नहीं आती. तो ये आपको इसमें उतरना ही पड़ेगा और आप तभी इसको सीख पाएंगे कि कैसे क्या करना है. And definitely there are people around to help, so they will help you a lot. So these are the ways you can overcome your challenge. Please go to the next slide. अभी जो what is the future trend? Future trend जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेंड है और इससे हम लोग भाग नहीं सकते हैं. हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि एआई से मतलब होता है कॉपी एंड पेस्ट कर लिया. नो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, if you are using it in a very sensible way, in a very intelligent way, it is a boon for yourself. क्योंकि जो आइडिया तो आपका ओरिजिनल है और आइडिया में थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा आइडियाज और मिल जाते हैं तो उस आइडिया को उसकी फीजिबिलिटी तक पहुंचा सकते हैं हम. तो जो फ्यूचर ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा एआई और पर्सनलाइज लर्निंग का ट्रेंड है और ये बहुत ही अडेप्टिव लर्निंग पाथवेज हैं जो कि टेलर्ड टू इंडिविजुअल नीड्स हैं. ये एक ऐसा लर्निंग ट्रेंड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए एक अडेप्टिव लर्निंग का ट्रेंड है जो कि मेरी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बना है, इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से बना है. अफोर्डेबिलिटी के सेंस में, एसेसिबिलिटी के सेंस में, पेस के सेंस में, अंडरस्टैंडिंग के सेंस में. अगर आपको लगता है कि आप उसमें डिस्कशन फोरम्स होते हैं, उसमें जैसे आपने 4 क्वाड्रेंट अप्रोच पढ़ा है जिसमें कि कहीं
डेवलप्ड सेल्फ कंटेंट होता है, तो कहीं डिस्कशन फोरम होता है, कहीं उसका इवैल्यूएशन होता है। वो सारी चीजें जो 4 क्वाड्रेंट की है पूरी अप्लाइड तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं मूक्स में, जिसमें लर्नर कहीं से भी लेफ्ट अलोन ना फील करे और उसकी हर एक नीड को पूरी तरीके से केटर किया जा सके। तो आपके भी इफ यू आर लर्निंग योर individual needs would be catered through the different ways which AI is suggesting, and it will be tailored in terms of your needs. Then ये बहुत ही माइक्रो क्रेडेंशियल्स के से शुरुआत कर आप डिग्री तक इसको ले सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मूव्स। माइक्रो क्रेडेंशियल्स मतलब एक छोटा सा सर्टिफिकेट, ठीक है, और जो आपको बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज तक ले पाने में मदद करे। ये बहुत ही स्टेकेबल सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आप लीड कर सकते हैं अपनी डिग्रीज तक ले जाने में। सो डोंट थिंक कि मैंने एक कोर्स किया है इसका क्या होगा। इफ यू हैव डन एनी कोर्स, जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने डेटा साइंस पे कुछ किया, नासा से कुछ साइंटिफिक लैब्स के लिए कुछ किया, एंड ही इज यूजिंग दैट। So वो छोटा सा certificate we can earn, and he if he wants he can go further with the new degree course। और वो degree courses भी अब UGC ने कुछ परसेंटेज में ऑनलाइन ऑफलाइन कर उन्होंने कर दिया है, तो आप लोग भी उसको डिराइव कर सकते हो। अगर आप लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, आप लोग के स्टूडेंट भी एक आध कोर्सेज को मूव के थ्रू कर अपने क्रेडिट्स को पूरा कर सकते हैं। NEP इस बारे में बहुत जोर से बात कर रहा है, एंड ये सब चेंजेस यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं। उस सेंस में भी आपको एज ए टीचर यू मस्ट बी अवेयर कि कौन से कोर्सेज आप अपने बच्चों के लिए सजेस्ट करो जो कि आपके कोर्स आपके प्रोग्राम से अलाइंड हैं, बच्चे सीखे वहाँ पर और उनके क्रेडिट आपके प्रोग्राम्स में ट्रांसफर हो जाए। हैव यू हर्ड दिस? योर यूनिवर्सिटीज आर डूइंग दिस, taking the credits from the MOOC and transferring it to the students, the bank of credits. Are you aware of this? MOOCs के through? Is well aware. I think those who are to transfer on the MOOCs through the, and the credit also it will be transferred to the MOOCs through the SWAYAM portal or the Okay. NEPTL जो भी लोग यहाँ पर AICTE portal, whatever. yes, Hello. अभी तो जो स्वयं और AICTE पोर्टल से और सब चीजों से हम कोर्सेज को फाइंड आउट कर अगर वो हम अपने यूनिवर्सिटीज से जो स्टूडेंट्स के मास्टर सेशन प्लान्स होते हैं जिसमें कि वो सब्जेक्ट दिख रहा है, आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप इसकी जानकारियां हैं एज ए मूक्स के बारे में, आपको सब इस FDP के बाद आप शुड बी 100% यू मस्ट बी रेडी कि कहाँ एक तो हम अपने लिए कर सकते हैं, हम अपना बच्चों के लिए इसको कर सकते हैं, हम अपना खुद का मूव तैयार कर सकते हैं, बिकॉज फ्यूचर ट्रेंड इसी पे ही है, एडेप्टिव लर्निंग पर ही निर्धारित है सबका फ्यूचर। और फ्लेक्सिबिलिटी रखने से ही लर्निंग बहुत अच्छे से होती है। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को भी, अगर आप लोग उस लेवल पे इन्वॉल्व हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में, तो आप लोग अपने स्टूडेंट्स को वैसे ही इंकरेज कर सकते हैं, दे कैन डू दैट, और कोर्सेज सीख सकते हैं। तो ये सब लर्निंग इसका पर्पस भी यही है कि आप एज ए टीचर यू शुड नो कि कैसे आप अपने टीचिंग में बच्चों को यूज कर सकते हैं कोर्सेज के साथ में। यू नो, मैंने हमारे यूनिवर्सिटी में एक आध कोर्सेज हमने ढूंढे कि कैसे वो बीएड में ये कोर्स आ सकता है। हमने वो कोर्सेज स्वयं के 2-3 कोर्सेज से अलाइन किए और वो कोर्स अपने उस 26 क्रेडिट्स में डाला है। बच्चों से कहते हैं रजिस्टर करो, टीचर भी रजिस्टर होता है, एंड बच्चों की वो क्रेडिट्स यूनिवर्सिटी में वो ट्रांसफर होते हैं। तो देखिए, ये दिस इज अ ब्यूटी, एंड अनलिमिटेड एज अ टीचर आई एम नॉट अवेयर, आई वोंट बी एबल टू डू दैट। So that is also a purpose. Your professional development lies when your students are growing. For them, you have to learn. You have to grow professionally so that you are able to guide them. So this is something, certificates that can be earned, degrees which can be earned, collected. Then ये course अगर आपको develop करना है, these courses can be developed in the partnership with companies and the organizations like UGC, like NCT, like IIMs, like IITs, like different universities. उनके साथ हम ज्वाइन कर हम कोर्स को इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। एजुकेशन में इंडस्ट्री स्कूल्स हैं,
आप इंजीनियरिंग के टीचर्स हैं तो आपकी इंडस्ट्री इंजीनियरिंग के फील्ड्स हैं, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के टीचर हैं तो आप बायोटेक्नोलॉजी के एरियाज आपकी इंडस्ट्रीज हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं। उनके आप लोग अभी तो बहुत पार्टनरशिप के लिए भी बहुत ओपन है। आप देखिए, एक आई वाज गोइंग थ्रू वन वेबसाइट ऑफ टाटा, उन्होंने एक CSR में कोर्स डेवलप किया है कम्युनिकेशन का फॉर द यूनिवर्सिटी, तो वो कोलैबोरेशन के साथ भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी। अब सिर्फ गवर्नमेंट के जो फंडिंग है उसके अलावा भी द कॉर्पोरेट्स आर आल्सो कमिंग फॉरवर्ड एंड दे आर हेल्पिंग टू डेवलप मूव्स। वो जैसे भी आप उनके एरिया से जुड़े हुए चीजों पे अगर मैंडेट पे आप चाहते हैं, देन जो इसका और जो ट्रेंड इसका जो है वो है वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। मेन इसका मतलब है इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसमें जो ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर कर ऑनलाइन के थ्रू, कोर्सेज के थ्रू बच्चों को आप रियल लर्निंग एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं। हैव यू गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल लैब्स? आपने देखे हैं वर्चुअल लैब्स या यूज किए हैं? साइंस के टीचर्स यहाँ पर हैं, क्या आपने यूज किए हैं वर्चुअल लैब्स? इनफैक्ट सोशल साइंस के, इंग्लिश के, सबके लिए वर्चुअल लैब्स अवेलेबल हैं। आप कोर्स डेवलप करिए, उसमें वो वर्चुअल लैब्स का भी ऑप्शन दीजिए, तो बच्चों को आप 360 डिग्री का एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो फ्यूचर ट्रेंड जो ये मूक्स का है वो है कि किस प्रकार से आप जो ये ऑगमेंटेड रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन है, इन सब के साथ डेवलप कोर्स, या आप खुद ऐसे कोर्स को ज्वाइन करिए जो आपको होलिस्टिकली आपका व्यू आपका बढ़ाए और आपको एक स्केलेबल फॉर्म पर जो आप स्केल कर सको, आप डिग्रीज अर्न कर सको, उस लेवल तक आपको पहुंचाए। दिस slide is clear. This slide was talking about the future trends. ये मूव्स किस प्रकार से आपके सामने आएंगे। तो अगर हम ये बातें जानते हैं तो हम बहुत ही आगे की बात अभी से समझ गए हैं, और उसी प्रकार के कोर्सेज अगर डिजाइन करने का ऑप्शन होता है तो वो करेंगे। अगर कोई कोर्स करने का मौका मिलता है तो इन सब चीजों पर चेक कर कर अपने कोर्सेज में ज्वाइन करेंगे, जिससे कि हमको एक बहुत ही इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस हमको मिले। दिस पॉइंट इज क्लियर। दिस फोर्थ, इसमें मैंने आपको मूक्स के और किस प्रकार की जो फ्यूचर नीड्स है उसके साथ में कलेक्ट करने की कोशिश की थी। एनी क्वेश्चंस यू हैव टिल हियर? कुछ क्वेश्चंस है आपके पास? एनी क्वेश्चंस यू हैव? No questions. Can we move ahead? Okay. So this is something, not a conclusive slide, but still I think it is a beginning of from here. It is not concluding, it is a beginning. We have to explore different MOOCs platforms, and now from now onwards अपना एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हुए हमें अपना प्लान डिसाइड बनाना है कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करें, जिससे कि हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट जर्नी आज से और अभी से स्टार्ट हो। दिस वाज द एंटायर थिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द MOOC अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। हर वक्त हमको अपस्किलिंग करनी है। मैंने आपसे कहा कि कुछ दिमाग में अगर आपके विचार आ रहे हैं कि मैं कौन सा कोर्स कर सकता हूँ, मैंने क्या प्लान है, मुझसे शेयर करिए, तो मैं हो सकता है मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूँ हाउ टू सर्च अबाउट देम। अगर अभी किसी ने कर लिया हो तो मुझे बता दें। अदरवाइज द होल कंक्लूसिव थिंग वाज, ये जो मूक्स हैं, मूक्स आपके लिए एज ए टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, फॉर योर इंडिविजुअल ग्रोथ, second, the growth of your students, and third, for your university and for your institution growth. अगर आप इन चारों चीजों में सारी बातें करते हैं तो नेचुरली अब ये जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, everybody is going to be benefited to the use of smoke. So this is all what I have to say. I wanted to show something of Coursera, but then before that, स्वयं को आपने देखा होगा। इफ यू वांट आई कैन शो इट अगेन हियर इटसेल्फ, बट कुछ और अगर आपको पूछना है तो पूछिए। अदरवाइज विद दिस की टेक अवेज आई विल कंक्लूड माय सेशन दैट
MOOCs is basically a commitment to learning, and it is something like to how to choose your course and how you practically implement it. कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आप करते हैं कि जो आपके करंट जॉब्स को एनहांस करे, आपके स्किल्स को बढ़ाए, आप एक बेटर एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर या कोर्स डेवलपर, टीचर, एजुकेटर के रूप में आप उभर कर आए. इट इज अ सपोर्ट सिस्टम. कहीं आपको लगता है कि मुझे कोई कंटेंट नहीं आता है, तो उसके लिए भी आप कोर्स ज्वाइन कर कभी कोई मौका चूक गए हैं, जब आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, हो सकता है उससे जुड़े हुए कोई कोर्स कर आपको और बेहतर तरीके से आप अपने टीचिंग में कंट्रीब्यूट कर पाए. तो उस लेवल पे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं. Thank you so much. This was all from my side. Anything Thank you, else you have ma'am. to ask? Thank you, ma'am. Very fruitful session. I would like to ask Anuji, you have said it is a fruitful session. So any questions you have? Any doubt or anything you want to get a clarity upon? यस मैम, मैंने कोर्स किया, मुझे सारे लेक्चर्स अच्छे लगे, लेकिन हम एज अ फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर हैं, तो हम कुछ अपनी पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं या मेरे स्टूडेंट्स भी बनाते हैं, तो उनको जैसे उनकी वीडियो एडिटिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, वो हमें नहीं आ पाता, तो उसके लिए हम लोग स्पेशली क्या करना चाहिए हमें मैम? उसके लिए देखिए, आपने सबसे पहले ये जो स्वयं पोर्टल को एक्सप्लोर किया है आपने? नो मैम. अच्छा, ओके. स्वयं पोर्टल एक swayam.gov.in करके पोर्टल है, जिसमें जी कि मैम. एक सेशन भी शायद आपको हुआ है, एज आई हर्ड फ्रॉम सर. हाँ, वो उसके उसके लिए बारे हाँ में बताया गया था हाँ. जी मैम. तो आप देखिए, आप लोग उसमें एक कोर्सेस है वीडियो और आईसीटी एनेबलिंग का कोई कोर्स है, आप उसको सर्च कर सकते हो. उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो फाइन आर्ट्स के, क्योंकि आप लोगों के सॉफ्टवेयर होते हैं, जी है ना, मैम. कुछ को सॉफ्टवेयर, बिकॉज वन ऑफ माय नोन पर्सन ही हैज डन वन कोर्स फ्रॉम स्वयं. आई डोंट रिमेम्बर द कोर्स का नाम क्या है, बट ही हैज लर्न एडिटिंग ऑफ पोर्ट्रेट्स टू दैट. स्वयं कोर्स से किया है उन्होंने, वो सीखा है. और ओके मैम. मैं एक बार अगर मैं पूछ के बता सकती हूँ, आई डोंट रिमेम्बर द कोर्स नेम, बट जी मैम, इट वाज अ 4 week कोर्स, एफडीपी था, जिसमें ओके मैम. उन्होंने वो सॉफ्टवेयर को यूज किया और उस सॉफ्टवेयर पे कैसे यूज करते हैं उसका सीखा उन्होंने, एंड उन्होंने एग्जाम दिया तो वो तो उन्होंने सीखा. बट ही लर्न कि जो पोर्ट्रेट की एडिटिंग करी जाती है, जिसके थ्रू वो डिजिटली उसको बना सकते हैं. आई थिंक आपका क्वेरी वही है कि कैसे यूज कर रहे यस हैं मैम, उसको, बिल्कुल बिल्कुल है ना. मैम. तो वो कोर्स एक है उस पे, जो कि मुझे मेरी जानकारी में है. वो कोर्स का नाम आई कैन, आप सर्च भी कर सकते हो, कोर्सेज ऑन फाइन आर्ट्स और समथिंग, स्वयं के पोर्टल पे जाके ओके. आप ओपन करिए swayam.gov.in एंड सर्च फॉर ऑल कोर्सेज एंड कोर्सेज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड डिजाइन करके, उसमें वो कोर्स का ड्रॉप डाउन आएगा. उसे बस आपको रजिस्टर करना है, ठीक है. अपने नाम से और अपनी यूनिवर्सिटी के नाम से रजिस्टर करिएगा. वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है. बस उसका एग्जाम के लिए आपको 1000 रुपीज देना पड़ता है, ठीक है. ओके मैम. और आप उस सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको, और आप वो स्किल भी सीख जाओगे. उसमें उसके वीडियोस हैं, उसमें उसका लर्निंग मटेरियल है, उसमें उसके डिस्कशन फोरम्स हैं, जिसके थ्रू आप उसको सारी बातें सीख सकते हो. एंड आई थिंक यू एंड योर स्टूडेंट्स कैन जॉइन टुगेदर. दोनों लोग ज्वाइन करिए उसमें. और बहुत ओके. बार हम लोग ऐसे करते हैं कि एक कोर्स को हम भी ज्वाइन करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी ज्वाइन कराते हैं. तो उनके जो कलेक्टिव असाइनमेंट्स वगैरह भी आते हैं, उसमें भी हम लोग एक मेंटोर की तरह काम करते हैं. बच्चे भी एग्जाम दिया, हमने भी दिया एग्जाम, और हमने दोनों ने कोर्स कर लिया. और कभी कभी टीचर ने एग्जाम नहीं दिया, बच्चों को एग्जाम दिला दिया. स्वयं में ऐसे ऐसे सुविधा है, मतलब जिसको एग्जाम देना है वो एग्जाम दे. तो और फिर वो कोर्स बच्चों को मेंटोरशिप में हम काम करा सकते हैं. स्वयं में ओके. मेंटर्स का भी ऑप्शन है. तो वो जो कोर्स है वीडियो एडिटिंग का, वो सॉफ्टवेयर था पोर्ट्रेट वाला, ऐसे कुछ मैं अभी आई थिंक सर्च से शेयर कर दूंगी, तो वो आप लोगों को ग्रुप ओके. में शेयर थैंक कर. यू मैम. थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक थैंक यू. ओके मैम. यू. इज देयर एनीवन हु हैज टू आस्क एनीथिंग? किसी को कुछ जस्ट पूछना है? Thank you, ma'am. Thank you. You delivered very nicely. We have understand the things whatever you have said.
and we are going to incorporate all your suggestions, and we will work on this Coursera searching courses about all other courses also. Thank you for your देखिए delivery. Thank you. मैंने ये देखिए कोसेरा का यहाँ पे शेयर किया है आपको, ये ठीक है, ये इसमें आप रजिस्टर करते हो और We यहाँ are पर aware, बहुत ma'am, सारे about the यूनिवर्सिटीज Coursera. We are aware, ma'am. Thank you very much. We have to Okay. search the courses here only. We are very much aware Yeah. about this Coursera. Even Okay. our university is a Okay. member So- of this. ओके वंडरफुल। सो दोज आर नॉट अवेयर, ये एक साइट है जिसपे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और ऑनलाइन डिग्रीज के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। स्वयं एक इंडियन पोर्टल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, डेफिनेटली वो बहुत ही मैंने आपको और भी चीजें बताने के लिए मैंने ये शेयर किया है, बट स्टार्ट विथ स्मॉल कोर्सेज, स्टार्ट रजिस्टर ऑन स्वयं, स्टार्ट विथ दैट and then move ahead with different courses and different universities which are offering. This is all I have to say. And इस पूरे ग्रुप में आप तो connected रहेंगे ही. Sir has a brilliant experience in this area, so he would be sharing a lot of things there, and we all can connect. Yes. Any other questions anybody has? शुक्रिया डॉक्टर रितु फॉर द वंडरफुल टॉक। अभी 5 मिनट और बात हो सकती है, इसी डायरेक्शन में आप कनेक्टेड रहें। अभी जो सवाल था, देखिए मैं एक लिंक शेयर करता हूँ। जी सर। देखिए ये हिंदुस्तान में कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोर्सेज भी ऑफर कर रही हैं और मूक्स भी हैं। अगर इनकी साइट पर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको लिंक मिलेगा, देन यू कैन गो टू द स्वयं। अभी देखिए ये है, वडोदरा में है, मुंबई में है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी कला भवन है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कला है। भवन, हाँ सर, इसमें वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज देयर एंड शी इज रनिंग दिस कोर्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में है। ललित कला का अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है, कहने का मतलब है इट्स इफ यू आर विलिंग टू मेक ए डिफरेंस देन यू कैन मूव ऑन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर वेरी मच। चंडीगढ़ में है, देखिए नहीं आप नेट पर बैठिए, देन यू विल फाइंड वंडरफुल इंफॉर्मेशन। जिस तरह से आप हमारे साथ जुड़े हैं इस कोर्स में कुछ डिफरेंट जानने के लिए, मैं डे 1 से यही कह रहा हूँ कि देखिए यू हैव टू बी सेल्फ प्रिपेयर्ड। आपके वक्त की कीमत है, मेरे वक्त की भी कीमत है। यू आर डाउन विद लार्ज नंबर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इसी में वक्त निकालना है। बस हमारा इंटेंशन ये है कि थोड़ा इग्नाइट कर सकें। अगर इसी डायरेक्शन में आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो देखिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट, शिकागो, न्यूयॉर्क, MIT, इवन की मूक्स कोर्सेज अगर आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस ऑफर कर रहे हैं। हमारे यहाँ थोड़े से लिमिटेशन है क्वालिटी के। इनफैक्ट स्वयं पर आप जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इफ यू गो टू द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तो वहाँ पे ये सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ओके ओके, थैंक यू सर। देखिए आप ही के लिए ये सारी चीजें देख रहा था। और अगर पीछे जाएं तो देखिए यहाँ पे मूक्स कैसे बना सकते हैं। मूक्स कोर्स ऑन फाइन आर्ट्स, आप देखिए। यस सर, यस सर। एक ही काम शुरू कर दीजिए और एक एक चीज पिकअप करिए तो आपका मूक्स कोर्स बन जाएगा। देखिए 2 मिनट में मैंने, देखिए आर्ट हिस्ट्री आपको बतानी पड़ेगी, आर्टिस्टिक टेक्निक क्या है, क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस क्या है, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट आपको, डिजिटल टूल्स फॉर फाइन आर्ट्स। देखिए ये जो बात कर रहे थे डिजिटल टूल्स, देखिए यस सर, इंट्रोडक्शन टूल्स, एग्जिबिटिंग आर्ट्स एंड सोसाइटी का रिलेशन कैरियर के साथ, फाइन आर्ट के साथ। ये मैंने देखिए माइंड मैप में बनाया जो मैं बराबर आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। और भी देखिए आप यहाँ पे मैंने इससे पूछा कि एडिटिंग का सवाल था आपका। जी जी सर, किस तरह से एडिटिंग करें, तो यहाँ पे टूल्स और सॉफ्टवेयर्स का जिक्र किया गया है। देखिए फोटोशॉप इज देयर, Corel Painter is there, Procreate is there, graphic tablets are there. These are the software which can help you to edit the painting, है ना।
यस सर, यस सर। आप बहुत अच्छा कर रही हैं। और तस्वीर नहीं है, मेरी एक बेटी छोटी है, वो भी बहुत खूबसूरत पेंटिंग करती है। ओके सर। She's just 11 years सर old. एक्चुअली में सर हम लोग भी बहुत अपना कॉलेज लेवल पे भी और हमारे स्टूडेंट कुछ हम लोगों को एक्चुअल में सच तो ये है कि अभी टेक्निकल भी हम लोगों ने कोर्स किया तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। इससे पहले नहीं हम लोगों को इतना पता था। तो ये जो आपने सारी साइट्स दी हैं इस पे हम लोग जरूर फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। Whenever there is a query, put your question Sir, on the net. सर देखिए, How we can learn? You 2 will मिनट get. का वक्त, 2 मिनट का वक्त है। देखिए मेरी बेटी की पेंटिंग देख पा रहे हैं? वेरी नाइस सर। मिस महाजन, आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं, देख पा रही हैं? यस सर हम देख रहे हैं सर। और मैं दिखाता हूँ, देखिए आप। अरे वाह, सर बहुत सुंदर है सर। उम्र है उसकी। सर बहुत सुंदर है सर। ये कितना आपकी बेटी कितनी बड़ी है सर? मेरे ख्याल से जब से इसने शुरू किया, शी वाज जस्ट 9 years old. अरे वाह। और मैं कितना एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए। हाँ सर बहुत सुंदर, रियली इज वेरी नाइस। इसलिए कि देखिए बेटी का मामला है ना, बेटी देखिए। वेरी ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंड सीस्केप सर। कैनवास पेंटिंग उसने तमाम की है, ये देखिए। ब्यूटीफुल सर। तो बस सर फाइन आर्ट में बहुत सारा स्कोप है। हम लोगों को थोड़ी सी टेक्निकल अगर नॉलेज हो तो हम लोग उसको इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। एक्चुअल में हम लोग एग्जीबिशंस करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भेजते हैं अपनी, लेकिन हाउ टू क्रिएट द ऑल द प्रोग्राम आई डोंट नो रियली। एग्जैक्टली, इसीलिए देखिए मेरे यहाँ फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट है। तो 2-3 दिन पहले मैं एक एग्जामिनेशन में सुपरिंटेंडेंट था, तो आई वाज मूविंग। तो एक टीचर वहाँ प्रोफेसर फाइन आर्ट के मिले, देन आई डिस्कस विद हिम। वो कहते हैं कि सर, मैंने कुछ तस्वीरें उनको दिखाई कि ये बस मुझे 2-3 सेशन आप मेरे पास ले आइए, आधा घंटे के, और आई विल गाइड टू द एक्सटेंट दैट यू कैन नॉट इमेजिन। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं कि वाकई आपने जो कहा, गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। और लेकिन विलिंगनेस होनी चाहिए, जैसे आपने देखिए ख्वाहिश जाहिर की, मैंने कुछ इनपुट्स दिए, डॉक्टर रितु ने दिए, और इसी तरह से रास्ता मिलता है। डॉक्टर रितु, बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल पाई और बहुत अच्छी जगह पे हैं। बहुत, मेरे ख्याल से लेस देन 15 डिग्री टेम्परेचर है जहाँ पे इस वक्त हैं। और हम लोग तो यहाँ 46-47 में हैं। सर लौट के तो वापस 46 में जाना है मुझे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। यस सर, आई एम रियली सॉरी कि नेटवर्क इश्यूज की वजह से कुछ होता रहा, बट ये चीज है जो हम थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं आपसे ऐसे ही काम ले लूंगा। हैप्पीनेस पे आप देखिए 2-3 मिनट का वक्त है, हैप्पीनेस पे कुछ बता दीजिए। हैप्पीनेस क्लब के बारे में, सेंटर के बारे में, बस 3 मिनट्स। राइट सर। हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जो हम सबको पता है कि, और सबको सब कुछ पता है कि हैप्पीनेस हमारे अंदर होती है, हमारी चीजों में होती है, ये सब चीजें। बट अभी उसके बियॉन्ड वी आर वर्किंग ऑन साइंस ऑफ हैप्पीनेस। हम ये काम जो कर रहे हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि चीजों को सीमित रहें, अपने विचारों को अच्छा रखें, और चीजों को पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। इट इज स्टेट ऑफ माइंड। A step ahead, now we are talking about science of happiness. It is a scientific way to learn to be happy. You can learn to be happy. तो वो जब चीजों का पर्सपेक्टिव बना, तो we started an initiative, and right now our center, Reiki Amity Center of Happiness for Science of Positivity and Happiness, is running, and we are conducting many researches on this. And for that उन्होंने कुछ मशीन्स भी करी हैं, रखी हैं, और सर्च कर रहे हैं, जिसमें कि हम ये प्रूव कर पा रहे हैं कि
क्या सिचुएशन से किस प्रकार से हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकली बिहेव करती है। तो क्यों ना हम अपने आप को उसी फेज में रखें जिसमें हमारे हार्ट बीट, हमारे बॉडी के जितने फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो सब चीजें उसी पे मेंटेन रहे। तो बार बार इसकी अवेयरनेस करने की जरूरत है, इसको एज अ स्किल। मैंने बार बार कहा है कि स्किल हमारे पास नहीं, नॉलेज तो बहुत है पर स्किल नहीं है। तो एज अ स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये एक लर्नेबल आर्ट है, एक डूएबल एक्टिविटी है हैप्पीनेस। इट इज जस्ट नॉट थ्योरेटिकल, वी कैन लर्न टू बी हैप्पी। तो वो इट इज ऑल पर्सपेक्टिव पे डेफिनेटली होता है, पर अगर हम उसको डेटा से प्रूव कर सकते हैं तो पीपल उसको बहुत ज्यादा समझने लगते हैं कि ऐसा था और अभी ऐसा हो रहा है, कल मेरे साथ ऐसा था, आज ये ऐसा हो रहा है, तो क्यों ना मैं इस तरह से करूं, तो इस वाले स्टेज पे मैं रहूं। तो वो जब हम डेटा से बात करते हैं तो पीपल में एक्सेप्टेंस बहुत आती है। So we are working in that area. Sir is also there with us because sir का बहुत ज़्यादा काम डेटा के ऊपर भी है, and हम we are मतलब डिस्कशन हमारे सर से बहुत से रहते ही है हमेशा। और इस हैप्पीनेस सेंटर के थ्रू we are not only limiting our work to our university, हमने पूरा एक एक हैप्पीनेस मिशन पर हम लोग हैं और आप सब लोग उसमें इनवाइटेड हैं to share your views, your concerns, and you're most welcome to our center. And बस एक मिशन पे चलिए कि हैप्पी एक हमारे हाथ की चीज तो है, but we can learn. It has got a science. It can be measured. It can be learned. The skill can be developed to be happy. अगर ये हम सीख जाते हैं तो definitely हम सब happiness को बढ़ा सकते हैं. This is what I have to say. अभी बहुत कुछ आप लोग के साथ शेयर भी आगे होता रहेगा। थैंक यू सो मच एंड सर थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इन लोगों के सामने प्रेजेंट करने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आई कैन नॉट हियर सर, आई थिंक यू आर ऑन म्यूट। आप एग्जिट Sir करें is please. muted. Take care, all the best. Friends, we have last session at 5:30 and followed by valedictory. सारे आपको instructions मिल जाएंगे how to download your relieving letter and certificates and grades also. Everything you will find today inshallah. So see you at 5:30. ठीक है? Thank you, sir. Thank Okay you, sir, thank you sir.